प्रिया शायद मैं एक स्नेक हूँ। मैं एक पतली और मैं भी कमजोर स्नेक हूँ। nor she is interested, nor she likes India. सच में? She feels unsafe here, nor she like Indian culture. Rather she ईरान के किनारे प्यार को हमने पाया, रख कहते जहां से दिल को फिर बसाया। You like her? what? Say, She who is commenting me permanently and continuously without stopping? Say it, man. What are you saying? Who is commenting me? Commenting you where? Is she your ex? what? What? Is she your ex? Ex? I am at yes, ex-girlfriend. I am asking it honestly. You have to answer me honestly. My ex. Yeah. Comment. No, wait. Now say the names of your ex to me one by one. Say the name of ex. 1, 2. You are counting? What you're saying? What you? How many you have? No, I don't have any X, Y, Z. I don't have any. I have just W. W means what? Wife. That's it. Okay. But what is the name of your ex, man? X-Man. X-Man is a X. movie. No, ex, comma, man. X, man. What is the name? What is your previous girlfriend's name? How I didn't remember. You don't remember. It's a decade that I So have. why her buttock is burning there? But it's burning. Really? Yes. Who is she? Let clear. What happened? Say to her one more again. If she start commenting in comment section of my videos, I will make chabab out of her. What you are talking? Which ex? Come clean and say the truth. Enough is enough. What? Say your ex-girlfriend's name one by one to me. I wanna see. I wanna check. But what happened? There is a girl Uh-huh. who continuously comments me and abusing me. Okay. It does not seem weird. Let's see the comment. बहुत अभिनंदन है दोस्तों आपका फिर से चैनल में। मेरा नाम दिवाकर है। हाय नमस्ते, मेरा नाम फाइजा है। और दोस्तों तो जैसे कि आपने देखा कि फाइजा ने मेरा गला दबा दिया और मुझसे पूछने लगी है कि मेरी एक्स कौन है। हु इज माय एक्स? एक्स कौन है भाई? कौन है एक्स? I don't know. डू यू थिंक आई हैव एक्स? मुझे बताओ। मुझे बताओ। क्या बताओ? No, I mean I don't know. What should I say? मुझे बताओ। आई डोंट नी में दो नाम। Yes. मुझे बताओ means I don't know. Yes. ये So I said right. नो मुझे बताओ। आई So डोंट नो। it means. जी। मुझे बताओ मींस आई नो। हाँ। टेल मी नहीं पता। नहीं पता। तो देखिए दोस्तों बात है कुछ ऐसी कि एक कोई लड़की है और वो लड़की फाइजा को कह रही है कुछ उल्टा सीधा कमेंट में। और वो ऐसा नहीं है कि एक वीडियो में, वो रेगुलरली ही फाइजा को कुछ ना कुछ बोलती रहती है, मुझे कुछ ना कुछ बोलती रहती है। ऐसी बहुत सारी आपकी कमेंट्स हैं, सभी कमेंट्स का हम लोग जवाब देंगे। लेकिन पहले हम उस लड़की का देखते हैं क्या सच में वो मेरी एक्स है या नहीं। And the how can I say, the funny point about it is that such people really think that they can go on my nerves. And we both of us, when we see such comments, we just start laughing. Really, why do you think that you can go on our nerves? Like you're just showing your low level, that much low level that the go. I don't want to talk more than it now. दोस्तों हम देखने वाले हैं वो कमेंट, वो सारी कमेंट। और कुछ कमेंट ऐसी हैं जिनका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। जैसे बहुत सारी पारिवारिक से रिलेटेड है कि भाई आपकी वीडियो में कोई दिखाई देता है, कौन दिखाई नहीं देता। तो सबसे पहले मैं पहली कमेंट ही आपको ज़बरदस्त तरीके से दिखाने वाला हूँ। हैशटैग फाइजा भारत छोड़ो। I know it was a live Bharat. भाई ये देखो, ये है कोई प्रिया दीक्षित 1063।
there is no ex, like there is no girl whose name is Priya. Priya, dear Priya, what is your age? Priya, oh You're Priya. talking like a 10-year-old girl. It's so bad. I don't have any ex named Priya. और फिर हम यहाँ पे प्रिया की बहुत ही प्रिय कमेंट लेंगे यहाँ पर. शी इज सेइंग दिवाकर नाउ ऑफिशियली ईरानी मुस्लिम फ्रॉम हार्ट सोल नेचर टेस्ट एक्शन # जोरू का गुलाम. You know what is जोरू का गुलाम? Is that handpicked? Yeah. Oh my god. And according to which facts you're saying such thing? सो प्रिया जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ बहुत ही विनम्र तरीके से, आपने जो मुझे यहाँ पर आधारित बिल्कुल ही ऑफिशियल तरीके से जो है मैं ईरानी मुस्लिम कह दिया, क्या मैं जानना चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपने ऐसा कौन सा कार्य किया है सनातन के लिए कि मैं आपको हिंदू कहूँ. We have to try to understand her, Diwakar. She is burning from jealousy. Burning from where? Censored. Censor. सो नेक्स्ट कमेंट ले लेते हैं यहाँ पर हम प्रिया जी का. प्रिया बहुत ही प्रिय कमेंट कर रही हैं. फाइजा लव दिवाकर till he is a Irani liberal and not dominating. Faiza never learned Indian cooking, nor she is Indian food, nor she like Indian food. And Indian food. How many times she said Indian food? She can't even speak one line of Hindi, nor she is interested, nor she likes India. She feels unsafe here, nor she like Indian culture. Rather, she turned her husband Irani. अरे यार मैं बहुत no वैसा. अरे यार मैं भारत बहुत पसंद है. तो भाई इतनी how much hate for you she have. Now I'm thinking like she can be my ex. Like Look. such words can only come out of from those people who has the mental obsessions. Like they want, like they are literally they are thirsty for the situation that you have, but because they don't have the situation, they want to abuse those people who has her or his favorable and desirable situation. तो भाई प्रिया जी ये क्या हो गया आपको, मतलब इंडियन कुकिंग पता है मटर पनीर कितना टेस्टी बनाती है वो, तुम्हें नहीं पता. दाल मखनी कितनी अच्छी बनाती है वो, ये भी नहीं पता. क्यों हम तुम्हारे घर आके थोड़ी बताएंगे. Maybe she is living here. हाँ. Who knows? Are you God? No, she is gay. तो भाई और हाँ ये बात ये this is true. Priya you said this thing true that she feel unsafe in India and just because Yeah. of people like you. Yes, exactly, just like you. Like such people. Like, no. She is too. I am thinking she's too little that I feel unsafe about her. I see so many people like you. Okay. And you're too little that even I get worried about you. Even you're too low, you're too small that I feel unsafe because of your existence. No, the unsafety feeling that I have is because of those toxic ones that Radical, you know, yeah, radical ones. Yeah, even she's toxic, but I mean radical. Yeah, Even religious radical भाई. people. और आपको पता ही है इंडियन कैसे होते हैं. तो बहुत बार हो चुका है, कई बार मेरे से कई लोग पिटने से बचे हैं रोड पे. But you know, because they, yeah. तो दोस्तों अगली कमेंट हम ले लेते हैं प्रिया जी की. यहाँ पर प्रिया जी कह रही हैं see in this video how Faiza got angry when Diwakar joked with her. हम ईरान नहीं जाएंगे. And she abused wish कन्या भाग भारत से तू. She said you poisonous snake run away from the country. She's describing herself. Look at snake. How can प्रिया शायद मैं एक स्नेक हूँ. मैं एक पतली और मैं भी कमजोर स्नेक हूँ. प्रिया तुम्हें कहाँ से क्या
तुम क्या कहाँ से देखती हो? तुम्हारी आंखें कहीं गलत जगह तो नहीं लगी हुई हैं? Dear Priya, enough is enough. You introduce yourself enough to us, and there is no need that you describe your features more and more. There's no need. We're on the studio. We're on the studio. Chill, chill. प्रिया जलन में जलन में ऐसी बरकरार है, ऐसी प्रिया जो है इतनी ज्यादा बुखलाई हुई है जलन में, क्या बताऊं? I know. Now you have to be very much happy because we made a video about you, huh? हाँ, अरे क्या बात है प्रिया, you are get famous. Yes, you get famous. Look. I still get angry whenever I see tears in eyes of Divakar mom as she is upset, not happy with Faiza next Sonam and Nikita. Sonam and Nikita are those girls who kill their husband and throw them into drum. Maybe I'm saying to you, she is she's just trying to literally. We were laughing, we were smiling, but now I have to say to you something very much serious. Even I said something, some of my previous sentences was very much serious, but I have to add something more that or maybe repeat myself that all the things she's trying to say comes it is showing her real instinct, her real side, and also her mental obsessions. Literally, it is just out of इसी क्वेश्चन से जो प्रिया ने यहाँ पर करा है, प्रिया जी ने इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन करे हैं, इसी क्वेश्चन से हम बहुत सारे क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे मेरी वीडियो में और बहुत सारी वीडियो में लगातार ये पूछा जा रहा है, कुछ लोग अच्छे तरीके से पूछ रहे हैं, कुछ लोग about which tears she's talking. I don't know. Do you live and I don't talk? I don't talk. We live and I don't know. So listen. बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि where is your mother, why your mother don't come in the video. तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, मेरी जो माता जी है, मेरी जो माँ है, वो अब यहाँ पर नहीं रहती हैं, वो रहती है मेरे ब्रदर के साथ देहरादून में, ठीक है? क्योंकि आपको पता है जब घर परिवार जब परिवार बढ़ता है तो अब उनकी जिम्मेदारी कम हो गई है, सारी जिम्मेदारी फाइजा पे आ गई है, मुझ पे आ गई है, तो अब वो जो है घर से बिल्कुल फ्री है और वो अपना जो है प्रॉपर तरीके से कहीं धाम जा रही हैं, कहीं मंदिर जा रही हैं, कभी जो है किसी रिलेटिव के यहाँ घूमने जा रही हैं। तो भाई ऐसा है, वो घर पे बहुत कम आती हैं और दूसरा उनको वीडियो में आना पसंद नहीं है। उन्होंने पहले भी कहा है that she don't like to come in the video. Let her be comfortable. तो why you're bothering her तो just by saying why she's not in front of camera, why she's not in front of camera. Even if you remember, if you check the previous videos, when you see her, she's not very comfortable in front of camera. So why you're just not insisting on this? Even this channel's name is Faiza Diwakar. It is we are couple, okay? And you are here to watch our couple contents. Why you wanna always see the third person? तो भाई ऐसी बात है, वो ज़्यादा वीडियो में आना पसंद भी नहीं करती हैं। जितनी बार आप आई होंगी, उन्होंने बड़ी मुश्किल से मैंने उनको मना के मैं लेके आया था वीडियो में, वो आना भी नहीं चाहती। और अब जो है वो घर पे बहुत ही रेयरली वो उनका आना होता है। वो कभी इस रिलेटिव के यहाँ, कहीं उस रिलेटिव के यहाँ, कभी मेरे भाई के यहाँ। ज़्यादातर वो देहरादून रहती हैं क्योंकि देहरादून तीर्थ स्थल है, उत्तराखंड तीर्थ स्थल है, तो वो ज़्यादातर वहीं रहती हैं। और मेरा भाई भी चाहता है कि वो उनके साथ रहें। तो फिलहाल भाई आपके सभी सवालों का जवाब ये था कि वो ज़्यादा आना नहीं चाहती वीडियोस में, दूसरा वो घर पे बहुत कम रहती हैं। तो दोस्तों एक कमेंट और बहुत ज़्यादा आ रहा था, मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि सिमिलर कमेंट है। कमेंट ये था कि ईरान में फाइजा के पेरेंट्स कैसे हैं, फैमिली कैसी है। सो एवरीबडी इज़ ओके इन ईरान। अब हाँ, अभी वहाँ कुछ भी नहीं है, कोई वॉर की स्थिति नहीं है, सभी लोगों को मालूम है। और क्योंकि आपको पता है कि वहाँ हैमदान में रहते हैं, तो हैमदान में थोड़ी सिचुएशन ख़राब थी। मैंने अभी अपने एक फ्रेंड से बात करी है जिसको आपने पहले भी देखा होगा, बहनाम, और जिससे हमने वीडियो कॉल पे बात करी थी जब वॉर की मतलब बात चल रही थी बहुत महीने पहले। तो उसने भी कहा कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, लेकिन आप सब कुछ बढ़िया है और ऐसी कोई परेशानी नहीं है। तो उसके पेरेंट्स, उसके पूरे फैमिली के मेंबर्स सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत ठीक है, बस कोई अभी तेहरान नहीं जा रहा, सब अपने अपने घरों पे हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ कमेंट सेक्शन था, कुछ मुझे जवाब देने थे, ख़ास तौर से इन मोहतरमा के जो कि बहुत ज़्यादा बौखलाई हुई हैं ये फाइजा को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है।
पता नहीं क्या क्या कह रही है। तो प्रिया जी आप जो कमेंट करें आप, मुझे पता है फिर से जहर जो है उगलेंगी, लेकिन अब फ़र्क नहीं पड़ता, हमें कोई फ़र्क नहीं, हमें किसी बात से भाई, मुझे तो कतई फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी कमेंट से, मैं बिल्कुल पक्का हो चुका हूँ। और अगर ये मेरे कोई नीच रिश्तेदार है तो भाई, रिश्तेदार वैसे मेरे नीच हैं, बहुत बड़े वाले नीच हैं, एक से एक बड़ा नीच रिश्तेदार है मेरा, बहुत बड़े मादर खोद है मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं बहुत बड़े वाले मादर खोद हैं। And let me say something to her, Priyaji. First of all, you have to be very much happy that we made a video about you. And I mean, you were the major character of this video about whom we talked, and so I think it is the only achievement that you have in your life. You have to be very much proud. And second thing is that, look, according to the psychological information that I have, you have to have a visit from a psychological clinic, psychological center as soon as possible, because you're suffering from a deep mental obsessions. Yeah. और दोस्तों फिर से मैं कहता हूँ, ये जो रिश्तेदार होते हैं, देखो भाई रिश्तेदार सबके ही मादर खोद होते हैं, लेकिन मेरे कुछ नेक्स्ट लेवल वाले हैं। तो बाकी मेरी जो फैमिली है भाई, वो आप लोग हो जो मुझसे फ़ाइज़ा से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मुझसे मिलने से एक हमारे मौली भाई हैं, वो पुणे से आए, कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, मतलब अनकंडीशनल लव समझते हो आप कि भाई, जो ऐसे लोग हैं ना जो आपसे इतना प्यार करते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है वो आपके रिश्तेदार हों, वो ज़रूरी नहीं है वो आपसे कोई आपका बचपन का दोस्त हो। कुछ लोग जीवन में ऐसे होते हैं जो आपसे मतलब इतना ज़्यादा आपसे लगाव रखते हैं, आपसे प्यार रखते हैं, मतलब वो अगर 7 समंदर दूर भी हों तब भी वो आपके प्रति अच्छा ही सोचेंगे। उसमें से हमारे एक भैया हैं, इटली में रहते हैं भैया, राजस्थान के हैं। फ़ोन करते हैं भाई, फ़ोन करते हैं, उन्होंने गुरुजी के लिए गुरु दक्षिणा भी भेजी थी। और कोई बाहर फ़ॉरेन में रहते हैं, एक अंकल जी हैं ऑस्ट्रिया में, वो कॉल करते रहते हैं। कोई एक और भाई हैं जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, वो कॉल करते हैं। तो ऐसे मतलब कितने लोग हैं, यूएसए से कॉल आती है, तो ऐसे लोग प्यार करते हैं। तो ये जो लोग हैं ना, जैसे मौली भाई हो गए, और बहुत सारी फैमिलीज आती हैं हमारे कैफ़े पे, दिल्ली से आती हैं, और बहुत सारे लोग हैं जैसे कि जो मेरे कॉम्प्लेक्स के ओनर हैं अजय भैया, मतलब ये ऐसे लोग हैं जो आपसे अनकंडीशनली लव करते हैं, आपकी सिचुएशंस को समझते हैं और आपको बिल्कुल मतलब आपको मोटिवेट भी करते रहते हैं कि हाँ भाई अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है। तो ये लोग सच्चे लोग होते हैं भाई, ये होते हैं सच्चे लोग। तो जो रिश्तेदार होते हैं तो मादर खोद होते हैं, हर किसी के मादर खोद होते हैं इसमें मेरी वाली बात नहीं है, मेरे नेक्स्ट लेवल के हैं भले से, लेकिन ये होते सबके लिए। लेकिन आप ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो हेल्प करेगा या आपकी मदद करेगा, आपको मोटिवेट करेगा, वो कोई आपका रिश्तेदार या दोस्त होगा, वो कोई भी हो सकता है भाई। जो आपसे प्यार करता है ना, सच्चा अनकंडीशनल लव करता है, वो कोई भी हो सकता है। और ऐसे इंसान को आपको पहचानने की ज़रूरत है कि वो इंसान कौन है। मैं कमेंट सेक्शन देखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं। मैंने यहाँ पे एक लिंक भी भेज रखा है कि जिससे आप हमें हमारे कंटेंट को जो है थोड़ा बहुत अपनी तरफ से कर सकते हैं। तो एक भैया आया, अभी उनका मैसेज आया था फ़ोनपे पे, उन्होंने भी कुछ भेजा था कि मैं इंडियन आर्मी में हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा दिवाकर तुम्हारा डिसीज़न जो भी है, तुम फ़ाइज़ा का बहुत ख्याल रखना, कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे बताना। भाई मतलब ये अनकंडीशनल लव है भाई, मतलब मैं उनसे कभी मिला नहीं। और जिन्होंने हमारी दिल्ली में फ्रेंचाइजी ली है, वो भैया कितने बढ़िया हैं, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वो मुझे और फ़ाइज़ा को बहुत पसंद करते हैं। Friends for sure, and we didn't like really. I have to say the same that we didn't make this video to say that we got sad because of this comments. Really, honestly, both of us, when we saw this comments, we started laughing. We burst out laughing. So it is not like there's nothing like this that we say that yeah we got very much offended. It is not like this at all. We just wanted to show the inside of the jealous person to you all, and we wanted of course we want to give you a lesson like to our old friends that look, there are always such people like such toxic people who out of jealousy or whatever negative feeling that they have toward you, I said to you, because they want something, they deserve something, but they don't have it, and they see that desire on you and you, so they feel jealous. Some of the people are like this. Never get affected by these people and just be full focus and be fully confident.
तो दोस्तों फिलहाल ये कमेंट थी, और मेंबरशिप का जो फॉर्म है वो भी अभी डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए श्रीराम पर्शियन कैफ़े की मेंबरशिप का फॉर्म फिल कीजिए, फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कीजिए। बहुत ही जल्द प्रेजेंटेशन लेके आ रहा हूँ, उसी के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया चीज़ होने वाली है, बहुत आपको मज़ा आने वाला है, बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। और जो लोग सोच रहे हैं ना बिजनेस करने का, भाई यकीन मानो ऐसी चीज़ भारत में आने वाली है। बस अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा, गुरुदेव जानते हैं, गुरुदेव का आशीर्वाद रहेगा, बहुत आगे तक इसको लेके जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और ओम नमो नारायण।